44%. 44% capex utilization is happening. Next question, 42. Sir, Dhruvaksh from Business Standard this side. Sir, given your insights on quadrupling and doubling of in lieu of the dedicated freight corridor, just wanted to understand, since integration is something you're looking at now, since there are so many other dedicated freight corridor proposals also in the line, are we looking at a completely integrated network, or are those DFC proposals will continue to be seen in isolation, or will this be an integrated, like a full quadruple Indian Railways network in the future? Too difficult a question to be answered at this point of time. See, the way we are looking at the entire, so let me put it like this. We have a PM Gati Shakti portal now. That portal has road network in it. It has the rail network in it. It has the waterways. It has practically every transportation which is required is part of that portal now. So the way we are looking at is, can we have a fully optimized network for the country? Whether the mode is rail or road or waterways, whatever, right? So the thought process is that we should look at, for getting a highly optimized railway transport network, at some place if you have to create a freight corridor, you create it. Some place you have to do quadrupling or tripling or even 6 lines, do that. Some places you need an expressway to be constructed, do that. So fill the gap which is there from whichever is the best mode. That's the thought process. 69. Sir, Somnath Roy from Songbatpatra in Bengal. Sir, hello. Yeah, speak. सर, विश्वकर्मा योजना में आपने जो सर ये बोला था कि मॉडर्न टूल्स के लिए 50,000 का सपोर्ट दिया जाएगा, सर ये सपोर्ट ही रहेगा कि लोन रहेगा? नंबर 1 क्वेश्चन. और सर सेकंड क्वेश्चन इज रेलवे का बार बार जो आपसे पूछा जाता है, रेलवे का कॉन्सेशन का कुछ अपडेट है क्या सर? पहला पॉइंट, जो विश्वकर्मा योजना में 15,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट है, ये ग्रांट है मॉडर्न टूल्स के लिए, ये लोन नहीं है, राइट? लोन जो मिलेगा कोलैटरल फ्री लोन 1 लाख रुपीस तक का, उसका उपयोग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है. मैंने आपके पास कई बार रखा है कि टोटल 59,000 करोड़ रुपीस का सब्सिडी रेलवे देती है पैसेंजर्स के लिए. सभी पैसेंजर्स को आज भी 55% कंसेशन ऑलरेडी मिल रहा है. 100 रुपये खर्च होता है नॉर्मली, किसी चीज़ में अगर 100 रुपये खर्च होता है तो कितना उसका प्राइस होना चाहिए? 100 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 110 होता है, 115 होता है, 105 होता है, लेकिन रेलवे 45 रुपये आपसे चार्ज करती है. 15 number. Sir, Prasunia from PTI. Sir, in 2015, National Computing Mission, Supercomputing Mission was approved for 72 computers. Now you have said that 9 more will be added. So if you can clarify the context, like this comes on top of it, and whether it will use the same funding or separate funding will be provided for the new one addition. Already there are 18 supercomputers which have been deployed, and over and above that 9 more will be added. The context is that every day computing requirement is increasing. These supercomputers will be having so many applications every day, applications in weather, applications in geology, applications in agriculture, applications in AI modeling, weather. So that's why 9 more are being added. Geology, applications in agriculture, applications in AI modeling, weather. So that's why 9 more are being added. Geology, applications in, it's over and above. Agriculture, applications in AI modeling, weather. So that's why 9 more are being added.
Sir, I want to ask about the timeline over and that above you're the looking at for completion of these AI 7 projects. And I might just add that, for instance, there were connectivity projects that were first undertaken for border areas as well. But 2 of them haven't worked out because of, sort of couple of constraints as also answered in the parliament. So, what is also the range of incomplete projects or the ones that have been abandoned while we are announcing new ones as well? So could we get like a comparative? What is also the range of incomplete projects or the ones that have been I would like to abandoned point while out that in the last 9 years, So could we get like a close to comparative? 25,000 kilometers have been constructed. I would like to point out that in the last 25,000 new tracks means this is practically bigger than many countries' entire network. These projects will add further capacity, further tracks. The timeline will of course depend upon land acquisition. Many cases, a lot of advanced work has happened for land acquisition. And because of the Gati Shakti portal, one important thing which has happened is, wherever the alignment was passing through any wildlife sanctuary or some area which is eco-sensitive, then we have changed the alignment to avoid that area. So we get faster approvals. Most likely these projects will move exactly at the same pace at which currently we are doing. Last year we added 5,200 kilometers. Most likely these projects 5,200 is like more than the entire network of Switzerland. So that much addition has happened last year. That same pace will continue. 52. More than the entire network of Switzerland. So Sir, that Prakash much Vedashu from addition has ET happened now. last year. We have That same pace will FAME continue. scheme being run by Ministry of Heavy Industry and then PM e-bus. Prakash Vedashu from e-bus. My question is that will there be any synergy going forward between these two industry and then PM e-bus? My question is that will there be any synergy going forward between these two industry and then PM e-bus? My question is that will there be any synergy going forward between these two industry and then among the 169 cities which are above the population of 3 lakh and so on a challenge method basis. Those are 2 schemes going on. The FAME 2 will be completing next year, April 2020. So on a challenge method basis, PM, those are 2 schemes going on. The FAME for this 57,600 next year will be spent on the next challenge method basis. Few years till 2030. Second last question, 256 and then last 2 number. Sir, my question to Mr. Railway Minister Ashwini Vaishnaw. Sir, what is the status of Visakhapatnam Railway Zone? It is a long pending issue. Last 2 number. Sir, my question to Mr. Railway Minister Ashwini. This is Prasad from NTV. Sir, what is the status of Visakhapatnam Railway Zone? Sir, what is the status of Visakhapatnam Railway Zone? Because it is a long pending issue. This is Prasad from NTV. Cabinet, Status of Visakhapatram Railway Of course. Zone. Sir, what is the status of Visakhapatram Railway Zone? Because it is a long pending issue. This is Prasad from NTV. Hello. Status of एक ही क्वेश्चन था सर. Can you please elaborate? Just wait. Hello, sir. Sir, can you please elaborate the detailed figures of job opportunity? Hello. Just wait. Hello, sir. Sir, आज कैबिनेट का जो एक बार डिसीजन आज लिया अनुभव हुआ होगा आप सबको कि जितनी बार प्रिंसिपल डीजी ने हाथ मिलाए हैं, सर आज कैबिनेट का जो एक बार डिसीजन आज अनुभव हुआ होगा आप सबको कि जितनी बार प्रिंसिपल सर डीजी एक ने लास्ट हाथ क्वेश्चन मिलाए होगा हैं, सर आज कैबिनेट रविंदर लास्ट 2 नंबर. सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अभिषेक हूँ, टॉप स्टोरी इंग्लिश पेपर से. लास्ट क्वेश्चन ये जानना है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी का डिटेल फिगर क्या होगा, कितना सर, जॉब क्रिएट मेरा होगा. देखिए अगर आप पीएम ई बस सेवा की ही बात करें कैबिनेट मीटिंग तो डायरेक्टली उस पे लगभग 55,000 नौकरियां उपलब्ध सर हैं। मेरा क्वेश्चन है, देखिए अगर आप पीएम एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करते हैं डायरेक्ट तो उस पर 55,000 के लगभग 55,000 नौकरियां रविंदर लास्ट क्वेश्चन. राजेश जी, चूंकि
चूंकि बहुत दिनों तक रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इसलिए अर्थ की समझ है उनको, अर्थ के रिपोर्टरों को भी समझ। बहरहाल अनुराग जी आपसे एक सवाल है और एक अश्विनी जी से, चूंकि पीएम ई सर्विस में फाइनेंस आप दे रहे हैं, पीपीपी मॉडल है, क्या इस पर कोई कंट्रोल केंद्र सरकार का रहेगा या फंड देके केंद्र सरकार को कोई इससे ज्यादा सर्विस में कंट्रोलिंग यहाँ आप दे रहे हैं? और दूसरा अश्विनी जी, पीएम साहब ने इस पर कोई कंट्रोल केंद्र सरकार योजना घोषणा की फंड देके 15 अगस्त को कोई सर्विस में ओबीसी समाज और पसमंदा समाज, दूसरा दोनों इससे बेनिफिट होंगे, कोई कंट्रोल जो आज घोषणा योजना है उससे पसमंदा समाज की कितनी नुकसान होगी, कितनी ओबीसी समाज इस योजना से अगले 5 साल दोनों इससे दो सवाल। रविंदर जी, जैसा आपने कहा, पीएम ई बस सेवा एक उसी सोच के साथ लाई गई है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार जितने भी शहरों में यातायात के लिए उनकी और सुविधाएं हो सके, एक उसी सोच, साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है। वर्तमान और भविष्य की मोबिलिटी को ध्यान में रख के किया गया है और वाहनों के लिए आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और साथ साथ सुविधाएं भी मिले की मोबिलिटी को ध्यान में रख के किया गया है। सफर और वाहनों सरल भी हो, आधारभूत ढांचा और सुलभ भी हो, उस दिशा में और सुगम भी हो, हमने उस दिशा में काम किया है ताकि ये सारे निर्णय उस दिशा में हो। वाहनों सब्सिडी जो है वो हम दे रहे हैं, सुलभ भी को चलाने के लिए सुगम भी हो, हमने इस दिशा में काम किया। बड़ी, मध्यम और छोटी बसें 3 साइज इसको तय किए गए। सब्सिडी जो है उनके अनुसार ही वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि एक सफल योजना हो। केंद्र सरकार के द्वारा सहायता जो है उनके अनुसार ही वायबिलिटी गैप फंडिंग हिल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के ताकि एक सफल योजना हो। 90% केंद्र सरकार वहाँ के शहरों और राजधानियों के भारत सरकार अनुसार ही और बाकी जो शहर है उनके 60 और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के ताकि एक सफल हम कंट्रोल करने में कहीं नहीं जा रहे। पीपीपी वहाँ के शहरों और राजधानी और एनसीसी मॉडल के ऊपर जाएंगे। बाकी जो ग्रॉस कॉस्ट और एक नेट कॉस्ट मॉडल हम कंट्रोल करने में कहीं नहीं जा रहे। विश्वकर्मा समाज की बात आपने पूछी, बस मोदी जी का विकास का जो मंत्र है वो है सबका साथ, विश्वकर्मा समाज का विकास, सबका विश्वास। बस किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा है उन सबको इसमें का विश्वास किया जाए। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon. Welcome to the joint press conference of Ministry of Ayush and World Health Organization today. Friends, Ministry of Ayush and World Health Organization is going to host the first ever traditional medicine global summit in India on 17th and 18th August 2013 in Gandhinagar, Gujarat. This momentous event will spotlight the critical role of traditional, complementary and integrative medicine in confronting pressing health challenges and driving global health and sustainable development. I welcome Minister of State for Ayush, Dr. Mahendra Bhai Mujbara, and Secretary Ayush, Shri Rajesh Kotecha, and Director Health Systems WHO, Southeast Asia Regional Office, Shri Manoj Jhalani. As we meet today, the mind goes back to April last year when the Honorable Prime Minister laid the foundation stone along with the world leaders including Dr. Tedros of WHO, our very own Tulsi Bhai, and the foundation stone, the balls have rolling. This particular global summit is kind of fructification of the 5 big challenges and big goals that Prime Ministers laid down for the sector.
fructification duration of the speech at the foundation. Big challenges and big format this today is laid down for the center. We will start by a presentation by Joint Secretary Mr. Rahul Sharma, and after that there will be an address by the Honorable. We will start by a presentation, and there will be a short question-answer session, Rahul Sharma, which will be tackled by the dignitaries on the dais. And I would request you to kindly keep this particular press conference limited to the Global Summit only. Thank you very much. Now I request this particular press conference limited to the Global Summit only. Thank you very much. Now I request this particular press conference. नमस्कार सभी को Global Summit कॉन्फ्रेंस में स्वागत। मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक ब्रीफली नमस्कार सभी को वहाँ होने वाले हैं उनके बारे में इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक ब्रीफली नमस्कार सभी को टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर on 17th and 18th of August. And it is almost co-terminus with the final G20 Health Ministers Conference, which is happening in Gandhinagar, same venue in Mahatma Mandir. And we have two parallel events from Health Ministry as well. It's a conglomeration of complete health ecosystem over there. And we have two parallel events from health as we have 6 WHO regions participating in the conference, and almost 550 plus delegates will be participating from 90 plus countries. WHO regions participating. The summit is going to be held in two. We have two components over here from 90 plus countries. WHO regions participating. The summit is going to be held in two. We have two components over here from 90 plus countries. WHO regions participating. So there is a conference part where we have it's a conference both the days. We have conference for 17 and 18. We have 5 plenary sessions. So and we have 6 parallel sessions over there. And the most significant part would be the interface session with health and traditional medicine, where all the G20 ministers, all the G20 ministers and all the invited countries for the G20 Health Ministers Summit participating in the health session, where we talk of modern medicine and traditional medicine together, the issues concerning the discussed over there. And parallelly, there is going to be an exhibition also over there, where all the 6 regions of WHO and Ministry of Ayush will be participating in presenting Ayush and traditional medicine to the whole world, where all the 6 regions of WHO and Ministry of Ayush are the 6 regions actually presenting the conference. We have participation from all the 6 regions, and it's a global summit, completely global summit. As in G20 we have G20, but in the WHO summit we are from around the world. If you see, all the 6 regions will be participating, and all the member states will be G20. We have 90 plus. We have G20 attending. We will have experts. We will have ministers. We will have policy makers, academicians. Everybody will be 90 plus. We have G20 attending. I'll give you a brief background of what is the ministers. We will have policy makers, and all of us know that for centuries, everybody tradition and complementary medicine has been an integral resource. I'll give you a brief background, and I think all of us are using it in some way or the other. And all of us know that 170 member states reported to WHO on the issue of traditional medicine. Strengthening policy, all of us are regulations on safe and cost effective. That was the background that WHO, with support of Government of India, has established. And WHO Global Center for Regulation for Safe, and the Honorable Prime Minister had the groundbreaking last year in Jamnagar. It has been set up in Jamnagar in April 2022, where we had Honorable Prime Minister from Mauritius, and WHO DG was had participated, where the center is going to be established, and already an interim office, groundbreaking ceremony, interim office already functioning in Jamnagar. Center is going to be established, and already an interim office, groundbreaking ceremony, interim office already functioning in next slide. Jamnagar. Center is going to be established, and go back. Interim office, groundbreaking ceremony, interim office already functioning in next slide. First, this is going to be the significant part is that this is on traditional medicine. This is the first global summit that is happening, and it is happening in India in Gandhinagar. And what we are looking forward from the summit, like on traditional medicine, this is the first global collective action
towards the evidence-based Gandhinagar traditional medicine for health and we are looking forward from the summit, like, and it will be a platform for all stakeholders, including policymakers, academics, researchers, private sector, to share best practices and evidence, data and innovation platform. And that is how all the sessions have been designed, keeping all these points in mind. And what we are looking forward from this, the declaration will be based on the outcome of this summit, will be helping in WHO and shaping future roadmap for the global center that we are having in Jamnagar. The declaration will be based on the outcome of this summit, will be helping in WHO and shaping future roadmap for the global center that we are having in Jamnagar. We are privileged to have Director General from WHO. We himself attending the summit on both the days. The global center, a part of the interface session, Director will be having the G20 mission. It's a huge opportunity for all of us to have G20 ministers, all the invited countries, as well as the traditional medicine expert academicians and all the policymakers from WHO on the same platform. And we have other dignitaries also, as we have mentioned, a lot of countries which have a lot of traditional medicine in their countries. They've all been invited and most of them are participating. We are happy to host all of them. A lot of countries which have a lot of traditional medicine in their countries. They've all been invited and most of them are participating. We have 5 plenary sessions and there will be 6 parallel sessions if you see. They have been designed and a lot of work has been done on that 5 plenary session, and we have along with WHO parallel sessions we will be participating. They have been designed. The last is one of the important interface sessions with the G20 ministers that we will be having on 18th, where integration of modern medicine with traditional medicine, what are the policy issues, what are the significance that the ministers. Next we are having on 18th, where integration of modern medicine with traditional medicine, what are the exhibition is also running, it will be running parallelly if you see. In the Mahatma Mandir itself, the exhibition on medicine will be organized. There we have also running all the 6 regions from WHO participating. In the Mahatma Mandir, next slide, modern medicine will be organized. Have we seen these visuals? All the 6 regions from WHO participating. Team will be inspired from the Indian Kalpraksha. All of us know the methodological machine is and it's going to be a very comprehensive display of from the Indian worldwide inspired by the concept of Gaia or Earth, the methodological interconnectedness of traditional medicine with the natural environment. And I think everybody is kind of now recognizing the significance of Gaia or Earth. Next slide, interconnectedness of traditional medicine. As I mentioned earlier, that there will be 8 distinct places and also now will recognizing the significant participation from around the world in the exhibition as well. There will be, as I mentioned earlier, 8 complementary or next slide, participation from around the world in the exhibition as well. There will be the theme, as we see, Ayush for planetary health and well-being. This is the Ministry of Ayush. We are also organizing an exhibition in the same area where the Ayush pavilion will have Ayush for planetary health and well-being as its theme. And where we'll be focusing on rich Indian biodiversity, wide network of our pavilion will have robust infrastructure of research and academics. It's a fast-growing industry, and where we'll be focusing on rich Indian biodiversity. It will actually give an insight into the best practices and groundbreaking infrastructure about how Ayush system are contributing fast towards sustainable development and health. And as all of us are aware that recently Ayush visa has been notified by Ministry of Home, where a separate category of visa has been introduced. So recently we are huge opportunity for us to actually by exhibiting and promoting what Ayush visa is all about. These are some of the visuals that is the opportunity for us to actually by exhibiting and promoting what Ayush visa is all about. विनम्र अनुरोध है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि हम लोगों को कॉन्फ्रेंस के बारे में प्लीज़ बताएं। विनम्र अनुरोध है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि हम लोगों को कॉन्फ्रेंस के बारे में प्लीज़ बताएं। Respected वैद्य राजेश कोटेजा जी, मिनिस्टर साहब से कि हम लोग Secretary Ministry of Ayush, respected Sri Rahul Sharma ji, Rajesh Koteja ji, Joint Secretary Ministry of Ayush, Secretary Ministry of Sri Rajesh Malhotra ji, Director Sri Rahul Sharma ji, General Rajesh PIB, Joint Secretary Sri Manoj Jalani ji, Director Department of Health, Sri Rajesh Malhotra ji, Dheeraj Singh ji,
Sri Rahul Sharma ji, General Systems Development Joint Secretary, WHO Organization, Southeast Asia Regional Office, Malhotra ji, Dheeraj Singh ji, friends from the print systems development and electronics media, WHO Organization, distinguished member of this esteemed audience, friends from the print, first of all, and namaste and good morning to all of you. Distinguished member, it is my pleasure to be here with you today. Audience, friends from the print, first of all, indeed a matter of great pleasure that the World Health Organization here with is convening a traditional medicine global summit, indeed in collaboration with the government of India, the world on 17th and 18th August, convening 2023 global Mahatma Mandir in Convention Center, Gandhinagar, Gujarat, India. The world on 17th. This is the first global summit on traditional medicine organized by the WHO Center, co-hosted by Ministry of Ayush. This summit will explore how traditional medicine can play a role in achieving universal health coverage and meeting global health challenges. This summit will, I am pleased to inform you all that Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director General, will inaugurate the event in the presence of Honorable Minister of Health Shri Mansukh Mandavia ji and Honorable Minister of Ayush Shri Sarvanand Sonowal ji, Government of India. Honorable Minister of the event is expected to attend by G20 Health Minister, Minister of Ayush, high-level domain expert and invitees from the 6th region of the event WHO. Expected to attend by G20 Health Minister, explained by our joint secretary domain expert Sri Rahul Sharma, along with from the 6th region of exhibition zone, a separate exhibition area, Ayush for planetary health and well-being. Sri Rahul will display Ayush efficiency, efficacy and rich biodiversity of medicinal plants. Some very interesting experimental display Ayush interactive kiosks will also be there. Biodiversity, dear friends, it is very natural that after the foundation laying ceremony of the Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar last year, we are going to witness this first global event, the foundation laying ceremony. It testifies the multi-dimensional strides taken by various studies, contemporary practice aided by visionary policies, and India has demonstrated a path for achieving universal health coverage taken by traditional medicine system. Contemporary practice taking into account the vast experience India has expertise of the country in universal health traditional medicine. The summit is expected to develop a roadmap towards creating a expertise more holistic and healthier world for the future generation by recognizing the interconnectedness between human health and creating planetary harmony and technological advancement. I am sure that the declaration based on the summit's outcome will aid in planning the roadmap for regulating and monitoring traditional medicine practices. The declaration based on all of you who gathered here. Thank you. Planning the roadmap for regulating and monitoring traditional medicine practices. The declaration based on all of you. Thank you very much, sir. अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे और अपना पहले हम अपने जब भी आपको जो है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन आंसर सेशन में इस समिट से रिलेटेड ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन आंसर सेशन में इस समिट नितेंद्र दूरदर्शन से बोल रहा हूँ सर। आयुष सेक्रेटरी से सवाल है मेरा कि जो आयुष वीजा है वो कौन लोग उससे लाभान्वित होंगे, कैसे कोई अप्लाई करेगा इस वीजा, और आयुष सेक्रेटरी से सवाल है मेरा कि जो आयुष वीजा है तो वो कौन लोग उससे लाभान्वित होंगे, कैसे कोई अप्लाई करेगा इस वीजा, और आयुष सेक्रेटरी से सवाल है मेरा कि जो आयुष वीजा प्रधानमंत्री जी ने जब ये जामनगर में इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया था उसके तुरंत बाद गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट माननीय प्रधानमंत्री जिसमें उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया था जिसमें DGWHO भी थे किया था उसके प्रधानमंत्री जी भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें घोषणा करी थी कि आयुष वीजा हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। अभी पिछले दिनों में आयुष वीजा माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आयुष वीजा जो है ये इसके साथ अलाइंड है
कि जो WHO के द्वारा जो ग्लोबल सेंटर पिछले दिनों में आया वीजा तो भारत में आने के कारण वीजा जो है विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के लाइन पर काफी चेतना सेंसिटाइजेशन ग्लोबल सेंटर पिछले दिनों में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है विश्व भर में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पर जैसे आपने बताया राहुल चेतना तो आयुष वीजा जो है वो क्यूरियोसिटी न केवल यहाँ चिकित्सा के लिए आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करेगी लेकिन यहाँ पर आयुष के ऊपर कोई उनको वैज्ञानिक जो है वो GCTM के अंदर कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट किया के लिए आने वाले लोगों और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से देश में कहीं भी किसी भी विधा से आयुष की विधा के लिए चिकित्सा GCTM के अंदर कुछ उन्होंने योग के प्रशिक्षण के लिए और तो उसके लिए आयुष वीजा ट्रैवल सेग्रीगेशन ई वीजा का मेडिकल वीजा किसी भी विधा से प्रकार से एक सेग्रीगेशन है तो उसका योग के भी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है तो उसके लिए आयुष वीजा ट्रैवल सेग्रीगेशन ई वीजा का मेडिकल वीजा किसी भी विधा से प्रकार से एक सेग्रीगेशन ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट होने जा रहा है तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि जो जितने पार्टिसिपेंट्स कंट्री है वो मेंबर हैं कि मेंबर ही जो WHO के साथ जो मेंबर है उनको बुलाएगा जो जितने पार्टिसिपेंट्स कंट्री है वो मेंबर हैं कि मेंबर ही जो WHO के साथ जो मेंबर है उनको बुलाएगा जो जितने पार्टिसिपेंट्स कंट्री है वो मेंबर हैं कि मेंबर ही WHO के साथ जो मेंबर है उनको बुलाएगा WHO पूरे विश्व से अपने सभी मेंबर स्टेट से वैज्ञानिकों को जो डायरेक्टर्स के ऑफिस को रीजनल डायरेक्टर्स को सबको इनवाइट कर रहे हैं पूरे प्रकार से अपने सभी मेंबर स्टेट से थैंक यू तो WHO में 194 मेंबर स्टेट्स हैं प्रैक्टिकली दुनिया के सभी राष्ट्र जो हैं WHO की मेंबर स्टेट्स हैं क्यों उनको सबको WHO में 194 समिट है मेंबर स्टेट्स हैं प्रैक्टिकली दुनिया के बारे में जानकारी दी और उसके बाद में मेंबर स्टेट्स हैं रीजनल ऑफिस WHO में 106 रीजनल ऑफिसेस के माध्यम से और विस्तृत कंट्रीज को जानकारी दी गई और फिर रीजनल ऑफिसेस ने कंट्रीज की रिक्वेस्ट के आधार पर रीजनल ऑफिस पार्टिसिपेंट्स का निर्णय किया और कौन कौन से देश जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम हो रहा है वो इसमें आने रीजनल ऑफिस पार्टिसिपेंट्स का निर्णय किया आ रहे हैं हर रीजन से जो 50-50 पार्टिसिपेंट्स बुलाए गए हैं फिर हेडक्वार्टर्स के 50 लोग हैं देश के हैं उसके अलावा हर रीजन से एग्जिबिटर्स भी हैं 50-50 पार्टिसिपेंट्स 600 लाए गए हैं फिर हेडक्वार्टर्स के 50 लोग हैं देश के हैं उसके अलावा हर रीजन से एग्जिबिटर्स भी हैं 50-50 पार्टिसिपेंट्स 600 लाए गए हैं फिर हेडक्वार्टर्स के 50 लोग हैं देश के हैं उसके अलावा हर रीजन से एग्जिबिटर्स भी हैं 50-50 पार्टिसिपेंट्स 600 लाए गए हैं फिर हेडक्वार्टर्स के 50 लोग हैं जी एक्चुअली ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो ये जालन जी ने बताया दुनिया के अधिकतर देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का अस्तित्व है वो अलग अलग लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उन देशों से भी बहुत सारे जैसे आपने बताया 50 अलग अलग लैटिन अमेरिकन देशों से आ रहे हैं तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिप्रेजेंटेशन से मैं बता रहा हूं 170 से ज़्यादा देशों में किसी न किसी प्रकार का ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग होता है और ये ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिशनल बता रहे मतलब 170 ही है मतलब ज़्यादा देशों में किसी प्रकार का ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग ऐतिहासिक जो ट्रेडिशन था उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन है मतलब ज़्यादा देशों में Sir, I am Santosh Mehta. My best wishes for your program. I am an independent journalist and write on various issues and health and all. Sir, I am Santosh Mehta. My best wishes for your program. How are you promoting this, Ayush on various issues to all the common people? क्योंकि ये मीटिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, इतना खर्चा करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी सर इसकी जानकारी नहीं होती, गाँव तक रह जाता है और कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ते हैं तो वो सारे लोगों को लेकिन ज़्यादातर वो सीमित रह जाता है तो दिल्ली में करेंगे तो अच्छा रहेगा
दिल्ली में करना चाहेंगे क्या? थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ते हैं तो कुछ दिल्ली में करने का इरादा वो सीमित रहेगा। धन्यवाद। तो एक्चुअली दिल्ली में करेंगे तो परसेप्शन है, इसी के लिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपसे सहयोग चाह रहे हैं। आपसे सहयोग इसलिए चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर बड़ी जबरदस्त आयुष का प्रेजेंस है। मैं उदाहरण देता हूँ आंकड़ों के साथ आपसे सहयोग चाह रहे हैं। आयुष के 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रपोज्ड है आउट ऑफ 150,000। उसमें प्रेजेंस पिछले साल उदाहरण 7,000 से ज्यादा ऑपरेशन हुए थे, लगभग 8,000। आयुष के 12,500 तो जो स्टेट्स ने हमें रिपोर्ट किया उसको हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया। 7,000 से ज्यादा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जो स्टेट्स ने हमें रिपोर्ट किया 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बहुत ग्राउंड पर एंट्री लेवल पर है, उन्होंने 8,42,00,000 पेशेंट देखे। तो ये स्मॉल नहीं है, इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पर बड़ी जबरदस्त सेंसिटाइजेशन है ग्राउंड पर। उसके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी पिछले जो 9 साल में 8 गुना बढ़ी है। ग्राउंड लेवल $3 बिलियन की 24 बिलियन डॉलर की। उसके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है कि जैसे ये इंडिपेंडेंट एजेंसी के स्टडीज है, हमारे 9 साल में 8 22 बढ़ी है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि ग्राउंड लेवल पर बड़ी जबरदस्त क्यूरियोसिटी है, यूसेजेस है, इंडिपेंडेंट एजेंसी के स्टडीज है। हमारे के बाद में 8 22 प्रसार हुआ है। कहना चाह रहा हूँ तो दिल्ली में भी बहुत सारी ये यूनिवर्सिटी है। WHO का निर्णय है कि हम लोगों को गुजरात में चूंकि गांधीनगर में जामनगर में ये कहना चाह रहा हूँ, तो दिल्ली में भी बहुत सारी गांधीनगर में, तो फिर हमने भी भारत सरकार ने भी इसको प्रपोज करने का संकल्प लिया, इसलिए कि G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग भी उसी समय हो रही है गांधीनगर में को ब्रांडेड इवेंट भी भारत सरकार ने इसको प्रेसिडेंट के साथ एक को ब्रांडेड इवेंट के रूप में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स तो G20 भी उसी समय हो रही है। एक इवेंट गांधीनगर ने बताया कि G20 मिनिस्टर्स और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर आए एक्सपर्ट्स एंड मिनिस्टर्स दे विल सिट टुगेदर फॉर एन एंटायर सेशन, पूरा एक सत्र साथ में बैठेंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम आगे लेके जाएं। और इस दे विल सिट टुगेदर के जो बिंदु भी बताए हैं, पूरा एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इनटू पब्लिक विचार विमर्श करेंगे। ये जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दुनिया भर में लेके जाएं, केवल आयुष जैसे के चैलेंज इन बताया सभी देशों की एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इनटू पब्लिक विचार में एविडेंस जनरेट करना जिससे टीम का एक मैंडेट है, केवल एविडेंस जनरेट करके उसको पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम तक लेके जाना, ये इसका मैंडेट है। मैं एविडेंस ने जो एक अच्छा कार्यक्रम में प्रशंसा कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम तक लेके कि उन्होंने इसका मैंडेट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटरिम ऑफिस से प्रारंभ हुआ, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में एक ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सर्वे किया पिछले साल। सर्वे के रिजल्ट भी इस इसके अंदर इसके प्रसारित होने वाले दुनिया भर में। तो इस सर्वे का ग्लोबल प्रेजेंस के कारण क्या है कि किस लेवल पर इसका प्रेजेंस है, उसको एक बार यदि प्रारंभिक रूप से जानकारी करें तो जिससे अंदर दिशा प्रसारित होना ही हो जाएगी। तो ये बहुत सीरियस कॉन्फ्रेंस है और आपने जैसे देखा होगा इसके आउटकम डॉक्यूमेंट पर प्रारंभिक दिशा देगा। ग्लोबल सेंटर इज ओनली वन सेंटर एक्सक्लूसिव। ये और आपने जैसे भारत के लिए बड़ा सम्मान की बात है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया दिशा देगा। और ये ग्लोबल सम्मान के कारण हम वन सेंटर एक्सक्लूसिवता से WHO के सामने भारत के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकारी देना चाहूँगा सम्मान के गांधीनगर में जहाँ पर है, यहाँ पर भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट नेशनल इंपोर्टेंस भी है, प्रस्तुत हो रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद मिलकर काम कर रहे हैं। जानकारी देना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए यहाँ पर काम करके बड़े बड़े एविडेंसेस जनरेट करें और साथ में मिलकर के दुनिया भर के ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम एक प्रकार से आगे बढ़ावा दें और भारत की तरफ से लीडरशिप भी प्रोवाइड, ये सब अपॉर्चुनिटी जनरेट करें और साथ में मिलकर दुनिया भर के सेक्रेटरी साहब नमस्कार, मेरा नाम है MK खान, मैं उर्दू राब्ता टाइम और सूचना समाचार से आई एम वेरी थैंक्सफुल यू कि पहली बात जो है आयुष जो है WHO कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मेरा नाम है MK खान, मैं उर्दू राब्ता टाइम। हमारा मेन इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है? आई एम वेरी थैंक्सफुल। नंबर 2 कि हम इस लायक तैयारी में हैं जो हम WHO के साथ कुछ आगे बढ़ सकें। नंबर 3 क्योंकि हम जो है ना योगा और आयुर्वेदिक तक सीमित रह गए हैं, जिसमें और भी जो है हिकमत का है और नंबर 3 तुम्हारा हम जो है ना योगा होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक तक सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम जिसमें और भी जो है जिसका हिकमत का है सिर्फ योगा ही हाईलाइट होता है, उसके बाद सब हम जो है ना योगा होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक तक सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम जिसमें और भी जो है जिसका योगा ही हाईलाइट होता है और इसके हमारे पास डाटा है, आपको मैंने प्रोवाइड भी किया, फिर भी कर चुका एक बार। एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री और इसके हमारे पास डाटा है, सैटेलाइट सेंटर्स का उद्घाटन फिर भी
एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। और ये सब 500 करोड़ पे खर्च प्रधान, आप कभी एक बार जाइए, मैं आपके लिए फैसिलिटेट करूंगा। आप हमारा जो गाजियाबाद में यूनानी का बहुत बड़ा केंद्र है, दुनिया भर में पीपीपी मोड में नहीं है, भारत सरकार चला रही है इसको। आप हमारा नहीं, ये भारत सरकार का है। थोड़ा सा संवाद ना करें। दुनिया भर में मेरी बात सुन लीजिए, मोड में नहीं है, भारत सरकार चला रही है कि वहाँ जाके देखिए यूनानी के नहीं है, भारत सरकार दुनिया भर में थोड़ा सा इतना बड़ा संवाद ना करें। प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं है। मेरी बात ये एक प्रकार से सहमत नहीं हूं। जाके देखिए, कुल मिलाकर के आपको जो प्रश्न का दूसरा दुनिया भर के बारे में बताना चाहूँगा, प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, ये उसके थीम में जो हो रहा है, कुल मिलाकर के आप कंट्री डाटा एंड ग्लोबल एविडेंस का सर्वे के रिजल्ट प्रस्तुत होंगे। डिजिटल हेल्थ के ऊपर एक स्पेसिफिक प्लेनरी है, उसके अंदर इंटीग्रेटिव हेल्थ के ऊपर भी एक सेपरेट कंट्री डाटा समिट का डिक्लेरेशन भी उसमें होगा। भारत सरकार का जो आयुष का पेविलियन है, उसमें हमने उसका टाइटल आयुष फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ के ऊपर भी, उसमें आयुष के सभी विधाएं, आयुर्वेद, यूनानी, भारत सरकार का जो आयुष का प्रयोग, नेचुरोपैथी, ये सब का जो प्लेनेटरी हेल्थ के लिए क्या कंट्रीब्यूशन, उसका एक डिजिटल सभी विधाएं हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या इसका हेतु क्या है कि ये एविडेंस जो उसका मैपिंग करना चाहते हैं, जो प्लेनेटरी मैपिंग करके इसको यदि हम डिजिटल सभी विधाएं करें तो कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ रिलेटेड दुनिया भर के लिए हमें क्या है कि ये दिशा दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना देखकर मैपिंग करके अभी हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है कि भारत सरकार के नेशनल आयुष मिशन में हमने देश भर में मोबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ लिपेटिक फाइलेरियासिस पर है। हमने लिपेटिक फाइलेरियासिस जिनको हो जाता है, उनको भातीपाव हो जाता है और उसका कोई इलाज नहीं है, तो हम आयुर्वेद योग और एलोपैथी मिल करके प्रोटोकॉल हो जाता है डिसेमिनेटेड थ्रू पब्लिक प्रोग्राम, उसमें उनके हम सूजन को कम करते हैं, इफेक्टिवली उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करते हैं, इंप्रूव करते हैं। इस प्रकार का ट्रांसलेशन जो है ना, इस प्रकार के उसमें उनके सूजन को कम करते हैं, इफेक्टिवली उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करते हैं, इंप्रूव करते हैं। अजीत कुमार रेडियंस मीडिया से 3-4 छोटे प्रश्न हैं मेरे। एक तो आपने इंटीग्रेशन की बात की जो लास्ट, हाँ बिल्कुल प्रश्न ही है इंटीग्रेशन वाला जो अजीत कुमार रेडियंस मीडिया से, समिट में इंटीग्रेशन के ऊपर एक तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा कि हम दोनों को ले सकते हैं, एक प्रश्न दूसरा है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है अजीत कुमार रेडिकल प्रैक्टिसेस जो समिट में इंटीग्रेशन के ऊपर प्रॉपर कैसे बन जाएगा कि पे दोनों को ले सकते हैं, कोर्सेज जो होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का इक्विवेलेंस कैसे होगा जो इंटीग्रेशन के ऊपर, और बाकी एनवायरनमेंट के ऊपर तो आपने दोनों को डेवलपमेंट कोर्सेज जो होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में मेरे जानकारी लेकर के अच्छा लग रहा है। WHO का जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है जालानी जी और उसमें एक स्पेसिफिक सेशन है वर्कफोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, रेगुलेशन पर दुनिया भर में रेगुलेशन की बात होगी, उस पर कैसे हम इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, सेशन वर्कफोर्स को कैसे मतलब HR को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चर्चा होने वाली रेगुलेशन पर। ऐसे ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, उस पर चर्चा होने वाली है। HR और रेगुलेटरी लीगल एंड पॉलिसी फ्रेम पर इनोवेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स सभी बिल्कुल में कवर होने वाला है। और ये काफी सीरियस डेलिबरेशन रेगुलेटरी लीगल एंड पॉलिसी फ्रेम पर WHO इस लेवल पर इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से WHO को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे इस प्रकार ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO के प्लेटफॉर्म कभी नहीं हुआ, दिस इज फर्स्ट टाइम। और ये हम सब भारत के लोगों को आशीर्वाद लेना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। कभी नहीं, ये जो इसका जो परिणाम आएगा हमके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पॉजिटिव इसका आउटकम होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। कभी नहीं, ये हम आखिरी 2 क्वेश्चन लेंगे, परिणाम आएगा हमके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नमस्कार, मेरा नाम सर्जना शर्मा है, मैं सनमार्ग से हूँ। झालानी जी और आप दोनों से मेरा सवाल है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम सब कंट्रीज का अपने हिसाब से होता है, इसको एक्सचेंज करना, एक दूसरे से इसको साझा करना कितना आसान या कितना मुश्किल। ट्रेडिशनल मान लीजिए इंडिया में आयुर्वेदा है तो वैद आपकी नब्ज देख के एक्सचेंज, तो आप इसको दूसरे एक दूसरे से साझा करेंगे, हम उनसे कैसे सीखेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे। मान लीजिए इंडिया में आयुर्वेदा है तो वैद आपके लिए कितना मुश्किल एक्सचेंज करना है या कितना इजी है, क्योंकि WHO ज्यादातर एलोपैथी पे कैसे सीखेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे। मान लीजिए अपने सिस्टम को वैद आपके लिए कितना मुश्किल एक्सचेंज करना है या कितना इजी है, क्योंकि WHO बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अनलाइक मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक बड़ी ये चुनौती रहती है कि अलग अलग जगह की ट्रेडिशनल मेडिसिन, बड़ा अच्छा सवाल है। पर
उसका उद्देश्य ये जो अभी कुटेचा जी ने बताया कि ये जो पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट WHO ने ऑर्गेनाइज किया है, पर और इसके अंदर जो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे प्लानिटरी हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल, मतलब सारी जो पहला तो फोकस है कि हम एविडेंस बेस्ड होगा, इसके अंदर जो हमारे पास इसका प्रमाणिक वो कर रहे हैं। और ये जब हम दुनिया भर से सब लोगों को ला रहे हैं और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि एविडेंस बेस्ड के प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स का प्रमाणिक वो सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर से के साथ जब साझा होंगी और एग्जीबिशन तो निश्चित रूप से एविडेंस बेस्ड एक दूसरे से जो लर्निंग होगी उस लर्निंग के बेसिस पर फिर आगे का रास्ता तय होगा। मान लीजिए कि निश्चित किसी को लगता है कि हमें ट्रेडिशन आयुर्वेदा के अंदर हम लर्निंग होगी देश में और आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर आगे फिर हो सकता है कि भारत सरकार के साथ बायलैटरल को लगता है कि हमें कुछ सीटें आप दीजिए के अंदर कि हमारे देश से हम लोगों को भेजेंगे और यहाँ पर ये इसकी विधा सीखेंगे और उसके बाद सरकार के साथ बायलैटरल लागू करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव इज मतलब हमने हमारे देश से हम लोगों को G20 का ये है कि पूरा का पूरा एक प्लैनेट एक फैमिली है, तो उस तरह से उद्देश्य WHO का यही है कि जो ट्रेडिशनल मतलब हमारा ज्ञान इतने सालों से है उपलब्ध उसका लाभ पूरी उस तरह से उद्देश्य WHO का यही और एक मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो समिट करने का जो ग्लोबल समिट किया है कि हम ये का लाभ और नॉलेज उस तरह से उद्देश्य WHO का यही और एक मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो समिट के सामने का ग्लोबल समिट किया है कि हम ये का लाभ और नॉलेज उस तरह से मेडिसिन का पर्सपेक्टिव बायोलेटरल में इस प्रकार के बहुत सारे बायोलेटरल डायलॉग भी होते हैं। हमने भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम पैरेलली डायलॉग कर रहे हैं। इसका हेतु क्या है कि एक दूसरे की विधाओं को समझना, एक दूसरे की विधाओं को एक दूसरे के देश में मान्यता देना, एक दूसरे के प्रोडक्ट को भी मान्यता पैरेलली डायलॉग सो दैट इट हैज एन काइंड ऑफ आउटकम ऑफ साइंस, आउटकम ऑफ एविडेंसेस एंड आउटकम ऑफ कॉमर्स आल्सो। तो ये सब चीजें उसमें होने वाली है सो दैट इट हैज एन स्पेसिफिक उदाहरण दिया कि आयुर्वेद के है तो साइंस गाड़ी कैसे बताएगा, तो मैं आपको जानकर देना चाहूँगा कि IIT के साथ मिलकर के हमने ऐसे वेरिएबल्स भी डेवलप किए हैं जो विच इज इन फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ऐसे कियोस्क भी डेवलप किए हैं कि आप वहाँ खड़े रहो तो आपकी प्रकृति भी बता देंगे विद सेंसर्स एंड आपका वेरिएबल पूरा डेवलप किए हैं, शरीर का आयुर्वेदिक एनालिसिस हो जाए, ऐसे भी डेवलपमेंट हुए हैं। और नाड़ी का कि आप वेरिएबल्स के साथ और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन हुआ, तो साइंस बेस्ड जो इनोवेशंस है ऐसे भी डेवलपमेंट भी शेयर्ड विद नाड़ी का एंड दे विल आल्सो शेयर के साथ अस। तो मिलकर के इसमें सब लोग मिलकर के तो साइंस बेस्ड आपस में जो इनोवेशंस है ऐसे भी डेवलपमेंट शेयर्ड विद नाड़ी का एंड दे विल आल्सो शेयर के साथ अस। तो मिलकर के अच्छा एक मैं ऐड करूंगा, अच्छा इन्होंने प्रश्न किया कि देश हर जगह अलग अलग कंट्रीज हैं तो अलग अलग हैं, पर अगर जैसे हमारे आप देखें कि जो बाउंड्रीज हैं अच्छा तो भाषा भी अलग होती हैं, बट अगर आप देखें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उस वो भी कभी कंट्री की बाउंड्रीज से हमारे आप देखें कि जो आप देखें तो उसमें रीजनल कंटिन्यूम है। अगर हम लोग देखें हैं जैसे आयुर्वेद की ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे अगर हम कभी कंट्री की बाउंड्रीज से हमारे आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है, उसका रीजनल कंटिन्यूम है। ये जरूर है भाषाएं अलग हैं, जैसे आयुर्वेद की ट्रेडिशन हजारों साल में इवॉल्व हुई है, उसमें कुछ कुछ अलग हैं बट बहुत सारी कॉमनैलिटी भी हैं। अगर आप देखें साउथ अमेरिका तो भी उनकी मेडिसिन में बहुत कंटिन्यूस हमें नजर आता है, भले ही भाषा उनकी भिन्न रहती है, कुछ कुछ अलग है। को आई थिंक जब एक प्लेटफॉर्म पे आके लोग और रीजनली भी इसमें बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं भाषा, उसमें कंटिन्यूटी ओवरलैप भी अगर बोले तो बहुत ज्यादा होता है, एकदम बिल्कुल सेपरेशन आती है, उस तरह बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं भाषा, उसमें कंटिन्यूटी ओवरलैप भी अगर बोले तो बहुत ज्यादा होता है, एकदम बिल्कुल सेपरेशन आती है, उस तरह सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं, उसमें कंटिन्यूटी ओवरलैप भी अगर बोले तो बहुत ज्यादा होता है, एकदम बिल्कुल सेपरेशन आती है, उस तरह सारे लोग WHO का अभी तक का जो रिजल्ट है वो उसमें ज़्यादा हमें न्याय मिला नहीं। हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका उन्होंने कम रिकॉग्नाइज किया, तो आज की डेट में भारत से हमें न्याय मिला। हमारे कितने ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिकॉग्नाइज किया है, प्रेस्क्राइब करते हैं रोगी को, और उसमें से कितना WHO ने उसे स्वीकारा है और आगे क्या थैंक यू।
देखिए ये भी एक परसेप्शन है बिकॉज हम आपसे समय समय पर आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हमारी ही कमी है। लेकिन WHO के साथ पिछले कई सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत सरकार का उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी ही कमी है। के बहुत जबरदस्त आउटकम यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक आयुर्वेद, पंचकर्म, यूनानी और योग, ये चारों चिकित्साओं के ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक आउटकम डॉक्यूमेंट WHO ने प्रसारित किया है। भारत सरकार के साथ मिलकर चारों चिकित्सा WHO ने इसको अपने एंड पर पब्लिश किया, विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, उनकी वेबसाइट पर भी है। तो एक तो ये एक आउटकम है। दूसरा आउटकम है हम टर्मिनोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी जो है वो ये तीनों विधाओं की, खास करके सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेद, ये तीनों विधाओं की टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ उसका टर्मिनोलॉजी जो है संवाद नहीं कर तीनों विधाओं की। WHO के प्लेटफॉर्म पर ये भी हुआ है कि टर्मिनोलॉजी में उसके मोर्बिडिटी कोड्स को स्टैंडर्डाइज करके नाउ देयर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय WHO फॉर हैविंग दिस कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ये दूसरा मोर्बिडिटी कोड। तीसरा आउटकम है कि नाउ ICD-11 करके जो इंटरनेशनल क्लास इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय WHO 11th एडिशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर है। दूसरा उस ट्रेडिशनल मेडिसिन तीसरा आउटकम है सिर्फ चाइनीज मेडिसिन का ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का मोर्बिडिटी कोड्स अवेलेबल है। लेकिन भारत सरकार और WHO ने मिलकर के पिछले सालों में उसके अंदर यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद का मोर्बिडिटी कोड्स आना चाहिए, उस पर काम चल रहा है। और अभी उसका बीटा ड्राफ्ट हो गया। बीटा ड्राफ्ट का मतलब फाइनल वर्जन से वन स्टेप बिलो। अभी उसके ऊपर इसी इवेंट के पहले एक उसकी फाइनल बीटा ड्राफ्ट हो गया। बीटा ड्राफ्ट का मतलब आई एम हैप्पी फाइनल इस वर्ष के अंदर WHO वन स्टेप बिलो ICD-11 में उसके ऊपर ये जो तीनों विधाएं हैं, यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद, ये तीनों के मोर्बिडिटी कोड्स के अंदर पब्लिकेशन ICD-11 हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ कि विधाएं हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ध्यान नहीं दिया है, और तीनों के मोर्बिडिटी कोड्स के उन्होंने बहुत काम हो जाया है। तो जो ये ग्लोबल सेंटर, ये उसका एक उदाहरण है। ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में स्थापना है, उसका उदाहरण है कि WHO का इस पर विशेष ध्यान है। ग्लोबल सेंटर उदाहरण भी करेंगे कि इनका एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी है। विजन डॉक्यूमेंट फ्रॉम का इस पर विशेष ध्यान है 2013 टू 2014 टू 2023। अभी विजन डॉक्यूमेंट को उन्होंने 2 साल एक्सटेंड किया है। वो भारत सरकार को लीड कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया है कि आप विजन डॉक्यूमेंट अगले 10 साल का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बने, उसमें भारत को एक उन्होंने प्रमुख दायित्व दिया है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कंट्री के रूप में बाकी कंट्री से बात करके बताइए कि विजन अगले 10 साल का पॉलिसी, ये सब कार्य हो रहे हैं। भारत को एक उन्होंने प्रमुख जमीन पर दिया है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कंट्री के रूप में बाकी कंट्री से बात करके बताइए कि विजन अगले 10 साल का पॉलिसी, ये सब कार्य हो रहे हैं। Thank you very much, respected media person. Thank you, Honorable Minister sir. Thank you, other dignitaries. We are bringing it to a close. Please join us for snacks on the 4th floor. Thank you so much.